स्टार्ट करते हैं. So hold a second. So you can see my screen, and we are going to start our new chapter that we called volume and surface area of solids. Okay, so I will just take a note of it. Volume and surface area. Any problem in this? So, hello. Yes, sir. आपके स्कूल में भी क्या करा रहे हैं वो लोग? यही चैप्टर करा रहे हैं क्या? No, sir. They're doing something else. Yeah. Okay, no issue. Don't worry about the school. Okay. अब बात करते हैं. Have you seen cuboid? Yes, sir. Okay. So in cuboid, how many faces do you have? 6 faces. How many edges do you have? 12. Good. And how many vertex do you have? How many Vertex. is there? Vertices. 12. No, 12 vertices are not. No, sorry. Wait. Tell me. 1 second. 1 second. Okay, I will help you. Don't worry. अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखो, so if you see here, मैं इसको थोड़ा सा elaborate यहाँ ये से लाइन खींच देता हूँ. Dot, और ये dot ऐसे आ जाएगा. Can you see that? Yes. This is our one vertex. This is our another vertex. Corners. Basically, what? Corner. Corners. So these are the corners. So how many corners do we have in this? 8. 8. ये तो थी बेसिक चीजें. क्या थी ये? बेसिक चीजें. अब बात करते हैं. ये हो जाएगा लेंथ इसका. Am I right? Yes, sir. ये हो जाएगा width इसका. तो width हम b से रिप्रेजेंट करेंगे. And this will with the height, so we have represented by h. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके. मेरी बात एक बहुत ध्यान से याद रखना. कोई भी वॉल्यूम निकालना हो, चाहे वो कोई भी शेप हो, any shape, you need to be remember a general formula for volume, that is what? Base area times height. What is the general formula I'm giving you? Volume is base area times height. इस बात को याद रखना always. ठीक है. तो अगर हमें क्यूबॉइड का निकालना है, किसका निकालना है हमें? Can you hear me? Sir, what did you say? We have to find the volume of cuboid. Okay, sir. Volume of cuboid. So आप मुझे देखकर फिगर बताओगे. What is the base here? What is the base here? The base here is. If you see my green portion, that is my base. Am I right? So what is the area for the base now? What is the area for the base? अच्छा चलो एक काम करते हैं. मैं आपको ना एक अच्छा से इसमें चीज बताता हूँ. आप समझो कि आप इस क्यूबॉइड के अंदर बैठे हुए हो. करेक्ट? कोई दिक्कत है? No, sir. अच्छा. आपके ऊपर में किस कलर का सरफेस है? ब्लू. आपके फ्रंट में जो अगर फ्रंट हम इधर मान लें, दिस इज द फ्रंट, सो कुछ येलो सरफेस आ रहा है, राइट? Yes. अच्छा. तो टोटल 6 सरफेसेस हैं आपके पास. तो अगर मैं मानता हूं कि फ्रंट सरफेस, सो फ्रंट सरफेस विल बी लुक्स लाइक समथिंग दिस. एम आई राइट? Yes. इसको हम बोलते हैं फ्रंट. क्या बोलेंगे इसको? Front. फ्रंट का एरिया क्या हो, ये क्या हो जाता है? ओके, आई विल राइट इट हियर. फ्रंट का अगर आप देखो, सो फ्रंट कैसा दिखता है? लेंथ विल बी लेंथ, राइट? फ्रंट कौन सा एरिया हो जाएगा? इफ आई कंसीडर हियर, फ्रंट विल बी माय व्हिच मार्किंग. मैं कौन सा मार्किंग करके दिखाऊं आपको? आई विल यूज डार्क वन. कैन यू सी द डार्क? I don't know the name of the color. Can you see the color? Yes. This is the front one. What will be the area for the front one? Tell me. Length हो जाएगा, लंबाई इसकी, right? Yes. और इसका width क्या कहलाएगा? इसका width height हो जाएगा. If you see that, आप इधर से देखो. Look from the front. देखो एरो मैंने बनाया है. Can you see that? Yes. तो अगर आप देखोगे रेक्टेंगल दिखेगा, तो कुछ ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा आपको. Am I right?
Yes. इसका एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का? LH। कोई दिक्कत है? No, sir. ओके अरे यार इसमें लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ? सो आई विल राइट डाउन हियर एरिया इज LH। कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay. Now, if you look from this side, if you look from this side, so this is the right hand side bolo ya left hand side bolo, am I right? Yes, sir. So it will be look like what? If you see the figure, it looks like this, correct? Yes, इसको sir. आप राइट बोल लो या लेफ्ट बोल लो, दोनों बोलना है, जो बोलना है बोल लो, ठीक है? Please don't mute yourself. Okay. Now, what is the length here? Length will be B, or width क्या हो जाएगा? Width will be the height. Am I correct? Yes. So what would be the area for this? BH. Area क्या हो जाएगा? BH. BH. कोई समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए अभी। इसको समझने में कोई दिक्कत है? No, sir. अच्छा, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ब्लू सरफेस, so blue surface is your top surface. Am I right? Yes, sir. तो ब्लू सरफेस को टॉप सरफेस अगर हम मान लेते हैं, तो टॉप सरफेस लुक्स लाइक दिस, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इसका लेंथ तो लेंथ ही होगा, और इसका विड्थ क्या हो जाएगा? इसका विड्थ बी हो जाएगा। कैन यू सी दैट? Yes. तो इसका ये टॉप सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? टॉप सरफेस का एरिया हो जाएगा L इंटू बी। कोई दिक्कत है? No, sir. ओके, इतनी बात समझ में आई आपको या नहीं आई? Yes, sir. इतनी बात आ गई। अब देखो मैं पहला चीज लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ cuboid. Volume of cuboid का मतलब base area. What is the base area? तो base is top और base will be same. Yes, sir. तो top और base का एरिया LB हो जाएगा। कोई दिक्कत है? No, sir. ओके, तो मैं यहाँ लिख दूं L times B, और what is the height? Height is given me as H. So this is the volume of cuboid. Can you see that? Yes, sir. ओके, इसके बाद आता है lateral surface area. क्या आता है? Lateral, sir. Lateral. नाम में ही देखो सरफेस एरिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ. सरफेस एरिया। तो इसका मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया का एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अब बोलोगे सर ये वॉल्स कहां से आ गए? ये चीज मैंने बोली है। अब सपोज इट, आप अपने रूम में बैठे हो ना, राइट? Yes, sir. तो आपको मैं बोलूं कि फोर वॉल्स आपके रूम में भी होंगे, एम आई राइट? Yes, sir. तो कौन कौन से फोर वॉल्स हैं मुझे बताओगे? कौन कौन से? सपोज आप इस क्यूबॉइड के अंदर बैठे हुए हो, तो कौन कौन से वॉल्स होंगे? एक फ्रंट वॉल होगा, एक बैक साइड का वॉल होगा आपके हिसाब से, एक राइट होगा और एक लेफ्ट होगा। एम आई राइट? Yes. तो अगर मैं देखूं, फ्रंट और बैक का एरिया सेम होगा या अलग अलग होगा? बताओ। Same होगा. तो फ्रंट, तो मैं यहां लिख देता हूं फोर वॉल्स का मतलब है फ्रंट। याद रखना लैटरल सरफेस एरिया में हम फोर वॉल्स जोड़ते हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। हम ये सारे एरिया को ऐड करते हैं। देखो ये फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फाइनल फॉर्मूला मैं लिख कर दूंगा आपको, यू हैव टू यूटिलाइज दैट। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानोगे तो दिक्कत होगी प्रॉब्लम्स में। अंडरस्टैंड? Yes, तो sir. फ्रंट का एरिया क्या है जी? फ्रंट का एरिया LH। तो मैं फ्रंट की जगह पे LH लिख दूं, बैक की जगह पे LH लिख देता हूं। लेफ्ट के लिए क्या यूज किया था? लेफ्ट एंड राइट के लिए BH, तो आई एम यूजिंग द BH। लेफ्ट के लिए भी BH, राइट के लिए भी BH। सो कैन आई राइट डाउन हियर 2LH प्लस 2BH? कैन आई राइट दैट? Yes. अच्छा, इसमें कॉमन क्या लेंगे हम? सो 2H इज द कॉमन, सो L प्लस B। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया, ओहो spelling mistake again, what is the lateral surface area of cuboid? तो आप क्या आंसर करोगे? ट्वाइस ऑफ हाइट इनटू L प्लस B। डू यू क्लियर? Yes, sir. ये है फाइनल फॉर्मूला, आपको बस ये यूज करना है। ये मैंने समझाया कैसे आता है। डू यू क्लियर दैट?
Yes, sir. और LSA को ही शॉर्टकट में लैटरल सरफेस एरिया को ही LSA भी बोलते हैं। तो याद रखना, कभी कभी LSA वर्ड यूज होगा तो कंफ्यूज मत होना कि क्या वर्ड है। डू यू क्लियर? Yes, sir. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझने में परेशानी? No, sir. नेक्स्ट, द थर्ड वन इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ऑल फेसेस, एरिया ऑफ। All faces. तो हमने ऑलरेडी देखो लैटरल सरफेस एरिया में 4 फेसेस निकाल रखा है हमने या नहीं निकाला है? निकाला. निकाला है। तो कैन आई राइट डाउन हियर LSA प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम? कैन वी डू दैट? Yes. याद रखना, टोटल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम ऐड करते हैं, और लैटरल और कर्व सरफेस एरिया में हम सिर्फ वॉल्स का साइड लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। क्लियर है? तो अगर आप LSA देखो, LSA क्या है? LSA इज 2LH 2BH। मैं लिख देता हूं 2LH प्लस 2BH। और एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ टॉप इज LB। सो आई विल राइट डाउन हियर LB, और ये भी LB है। तो अगर आप देखो, सो दिस बिकम्स 2LH 2BH एंड 2LB। मैं थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देता हूं, तो कैन आई राइट डाउन 2LB 2BH 2LH? कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, sir. प्लेसेस बदल दिया अपनी मर्जी से। सो नाउ ट्वाइस ऑफ LB BH LH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ TSA। डू यू क्लियर विद दिस? Yes. तो एक काम करो, जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लो, जल्दी से लिखो, ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ओके, Dhruv, are you writing? Yes, sir. I'm writing. Okay. Dhruv, done? Yes, sir. Okay, that's great. Shall we proceed? Yes, sir. Okay. चलो, अब बात करते हैं हम इसके छोटे भाई की। छोटा भाई कौन है इसका? तो क्यूब है। कौन है? क्यूब। ओके, सो आई विल जस्ट शो यू द क्यूब, होल्ड अ मोमेंट। और आप तो क्यूब खेलते भी हो ना, क्यूबिक्स के साथ? Rubik's Cube. रूब्रिक्स, यस यस। तो चलो, तो मैं काम करता हूँ, मैं ना एक क्यूब ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, आई हैव टेकन दिस। इसको कैसे दिया जाए?
Just a moment. Okay. Now you can see I have taken this. Can you see that? Yes. क्यूब जो है वो क्यूबॉइड का भाई है. ओके. कैसे मैं बताता हूँ. In cuboid, all the edges are different. Am I right? Yeah. Length, breadth, height. मतलब एग्जांपल लो So कि not all. that means लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीन चीज अलग होती है ना. मान Yeah. लो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, इसको पकड़ लो 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ रहता है. करेक्ट. Yeah. बट क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ breadth, height, all will be equal. All will be what? Equal. Equal. So can I consider it as a A? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? Do you know that? ये तो पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में. याद Yes. है या नहीं? No, sir, I have one doubt. हाँ बोलिए. Sir, I have heard most of the maths teachers saying equal instead of same. What is the difference between them? Tell me again what you are asking. I have seen most of the teachers saying equal rather than saying same. What is the difference between equal and same? Okay. ये इक्वल एंड सेम वर्ड कहाँ, सिमिलैरिटी में सुना है आपने या यहाँ पे सुना है? नहीं, बहुत जगह भी सुना है. ओके, बहुत जगह सुना है. सेम एंड इक्वल का क्या डिफरेंस होता है मैं बता देता हूँ आपको. गिव मी अ सेकंड. ये क्या बनाया मैंने? कैन यू सी दैट? What is this? It's a square. It's a square, right? Okay. ये क्या बनाया मैंने? Square. Square. और ये क्या बनाया मैंने? Square. Square. मैं तीन शेप्स मैंने ड्रॉ किए, A, B and C. 3 shapes हैं, right? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. If I go for this angles, I'm talking about the angles. All the angles are 90, 90, 90. Correct? Yes. कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. No. Now, if you see that, if you compare A and C, if you compare Yeah. A and C, they looks like same. They looks like same. मैं यहाँ लिखता हूँ. I am comparing A and C. They looks same. Same क्यों जी? क्योंकि उनका शेप एक जैसा है, उनका एंगल एक जैसा है, but they are not equal. They are Not equal. equal in the means अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर है. Can you see that? Sir, so we can also say that the size of the squares are not same. Yes, you can say that. Okay, तो वो पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा उस केस में. ठीक है. ये जो रूल्स होता है we have to learn in similarity. आपको सिमिलैरिटी चैप्टर पढ़ना है ट्रायंगल में. किसमें पढ़ना है? Triangle. ट्रायंगल में. जब मैं वहां पढ़ाऊंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. इसको आप बोलोगे अच्छा ए और बी में क्या है? ए और बी में A and B, if I talk, they are looks like same and equal. Okay, that is the reason आप इसको congruent बोलते हो. Congruent नाम याद है? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं congruent. A और B congruent हो गया. क्यों? वो same भी है, equal भी है. But A and C are just same. They are not equal. That's why we say similar. हम इनको A and C को similar बोलते हैं. Do you clear with this? Yes, sir. हाँ, तो ये डिफरेंस है. जब मैं वो पढ़ाऊंगा ट्रायंगल चैप्टर तो मैं और डिटेल्स में जाऊंगा. डोंट वरी. अभी मैंने बहुत छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट दिया है. आई विल गो इन डेप्थ डिटेल. ओके, अभी यहाँ बात करते हैं बिकॉज ये चैप्टर बहुत इजी है. माइंड डाइवर्ट मत करो. मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको. आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मेरे स्कूल में तो वो चल रहा है, सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ. फॉरगेट अबाउट स्कूल. ठीक है? Yes, sir. आपको बोर्ड में मार्क्स लाने से मतलब है ना. Yes, sir. स्कूल का यूनिट टेस्ट या जो भी मतलब जो होना है वो थोड़े बहुत प्रैक्टिकल के नंबर दे देंगे, वो सब कुछ दे देंगे. मेनली आपको बोर्ड पे फोकस करना है, राइट?
Yes. बाद बाकी स्कूल में क्या होता है नहीं होता उससे क्या मतलब हमें, अंडरस्टैंड। तो स्कूल का पूरा भूल जाओ, आपके लिए मैंने स्ट्रैटेजी डिफरेंट बनाई है, ठीक है। मैं जो बोलूं आप प्लीज उसको फॉलो करो, ठीक है। एंड दैट इज माय गारंटी, you will get 80% at least in your maths exam, at least 80% आप पाओगे, दैट इज माय गारंटी, अगर आप फॉलो करते हो तो, ठीक है। माइंड डाइवर्ट मत करो, ठीक है। Yes, sir. हाँ, इधर उधर की बातें सोचना छोड़ दो कि मेरे स्कूल में तो सर वो पढ़ा रहे हैं, टफ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, मैं इतने इजी इजी सम कर रहा हूँ। फॉरगेट अबाउट इट, सब कुछ भूल जाओ, लिव इट ऑन मी, मेरे पर छोड़ दो, ठीक Yes. है। मेरे ऊपर पूरा भरोसा करो, जब तक भरोसा नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। Yes. एंड ट्रस्ट मी, मैंने मतलब बहुत से बच्चों को जो बहुत वीक हुआ करते थे, ठीक है, आप उतने वीक भी नहीं हो, यू आर इंटेलिजेंट, ओके। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने, बट यू कैन डू इट, मैंने देखा है। आपकी आईक्यू अच्छी है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या होता है आप इधर उधर बहुत सोचते हो, इधर उधर मत सोचो, फोकस करो, ठीक है। चलो, Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में मैंने आपको बताया कि ये है क्यूबॉइड का छोटा भाई, ओके। Yes, sir. क्यूबॉइड के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था हमने, LBH, ये यूज किया था ना क्यूबॉइड के लिए। Yes, sir. तो इसकी जगह क्या यूज करेंगे हम, A A, तो क्या हो जाएगा ये ए क्यूब का मतलब साइड क्यूब। डू यू क्लियर, Yes, sir. कोई दिक्कत है वॉल्यूम ऑफ क्यूब में? No, sir. ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम नहीं, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, LSA। अब देखो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, LSA ऑफ क्यूब। उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था हम लोगों ने, 2HL प्लस बी इन क्यूबॉइड, ये यूज किया था ना। तो सबकी जगह ए पुट कर देंगे हम लोग। Yes, sir. Sir, can I go to the third slide? थर्ड, ओके यस। I did not copy that क्यों कॉपी नहीं किया, मैंने जब बोला था तो? because it did not go on the slide. ओके ओके, कॉपी इट फास्ट। और देखो मैथ्स में जो है आप पूरा भूल जाओ कि क्या स्कूल कर रहे हैं, व्हाट दैट, वो जो कर रहे करने दो, ठीक है। Yes, sir. हाँ, उनको उनको भूल जाओ कि वो स्कूल में मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज मैंने आपके लिए कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज की है, ओके। Yes, sir. आप बस भरोसा करो और जितना मैं कहता हूँ उतना काम जल्दी जल्दी कर लिया करो, दैट इज एनफ। नोट कर लिया? Yes, sir. Done. ओके, वापस यहाँ आओ। LSA ऑफ क्यूब क्या हो, अच्छा ये फॉर्मूला याद रखना है, भूलने के लिए नहीं दे रहा मैं कि भूल जाओ, याद करना पड़ेगा। सो दिस इज 2A times 2A, which gives me 4A square. That means 4 times side square will be LSA of cube. Do you clear about it? Yes, sir. वैसे ही अगर आप देखो, सिंपल सी बात मैं देखता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब ऑल 6 फेसेस का निकालना पड़ेगा, राइट? Yes. और हर फेस का A square is the area, so we can directly write down 6A square. So 6 times side square. Make a note of it fast. क्लियर है? Yes, sir. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सिलेंडर में, ओके। सो गिव मी अ मोमेंट, मैं काम करता हूँ, मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, मैं जल्दी लिख रहा था उनको, गिव मी सेकंड। ओके, गिव मी सेकंड प्लीज, कॉपी। Can you see something here? Can you see something here? Dhruv, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What you can see in here?
I can see a cylinder. ओके, तो सिलेंडर जो आपने देखा यहाँ पे, राइट, तो आप देख रहे हो इसका सिलेंडर में क्या होगा, एक सर्कल होगा, करेक्ट, Yes, कैन यू sir. सी दैट, और Yes, ये sir. हाइट, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, Pi r square. तो देखो यहाँ लिखा है बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, कैन यू सी दैट, Yes, sir. एंड हाइट इज h, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मेक अ नोट, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h। Sir, how many formulas are there like this? बहुत सारे हैं, हर शेप्स के लिए पढ़ना है, हर शेप में 3 फॉर्मूला है, हर शेप में 3 फॉर्मूला है, एंड डोंट वरी, आप काम करते करते याद हो जाएगा, ठीक है, Yes. घबराने की जरूरत नहीं है, काम करते करते सॉल्व करते करते याद हो जाएगा, अंडरस्टूड, Yes, sir. ये नोट कर लिया, Alright. देखो इतना सारा कुछ नोट नहीं करना है, सिर्फ नोट करो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h, पूरा नोट नहीं करना है, गेटिंग माय पॉइंट, Yes, sir. ओके, चले आगे बढ़े, Yes, sir. ओके, अब आता है इसमें सिलेंडर में सेकंड चीज, कर्व सरफेस एरिया, क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया, सो कर्व सरफेस एरिया को देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, इफ यू सी हियर, अगर आपने एक सिलेंडर को ओपन कर दिया, सिलेंडर को क्या किया आपने, ओपन कर दिया, तो आपको सॉलिड मतलब ओपन 3D हम नेट बनाते थे ना, ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मुझको मिल जाएगा, कैन यू सी दैट, Yes. अच्छा, और ऊपर में 2 सर्कल मिलेंगे, तो अभी हम ऊपर 2 सर्कल को भूल जाते हैं, हम सिर्फ रेक्टेंगुलर पोर्शन मान लेते हैं कि ऊपर सर्कल्स अभी नहीं थे, क्लियर है, अब एक Yes. चीज बताओ, ये जो सरकमफेरेंस है सर्कल का, वो ओपन होकर तो स्ट्रेट लेंथ बन जाएगा, am I right? Yes, sir. So the length will be equals to what, length will be 2 pi r, Yes. and this height will be same as height of this, तो इसका एरिया मतलब ये जो स्ट्रेट रेक्टेंगुलर पेपर हो गया, दैट एरिया विल बी इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर मालूम है क्या होता है, दिस पोर्शन, दिस एरिया, नॉट टॉप नॉट ये नॉट टॉप नॉट बॉटम, दिस पोर्शन इज द CSA, डू यू अंडरस्टैंड, Yes, sir. तो CSA of cylinder we can write it down here is equals to area of rectangle, कह सकते हैं हम लोग, Yes. और ये जो रेक्टेंगल है इसका है L into B, तो लेंथ की जगह पे क्या है आ जाएगा 2 pi r, और B के विड्थ की जगह पे क्या दिया हुआ है, हाइट, करेक्ट, सो CSA क्या हो जाएगा 2 pi r h, डू यू अंडरस्टैंड, Yes, sir. तो आप यहाँ पर यहीं पर नीचे में लिखेंगे CSA, CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, एंड दैट इज व्हाट 2 pi r h, बस आप इतना ही लिखोगे और कुछ भी नहीं लिखोगे, डू यू क्लियर, Yes. ओके, Wait, I'm writing. हाँ ओके ठीक है, Done, sir. डन, ओके चलो बहुत बढ़िया, अब इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, क्या आता है, टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस एरिया में देखो आपको कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को हम TSA कहते हैं, क्या कहते हैं, Yes, sir. TSA, इसमें आप कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम दोनों ऐड करोगे या नहीं करोगे, Yes. सो 2 pi r h, तो ये CSA हो गया, एंड दिस इज pi r square, दिस इज pi r square, राइट, Yes. so 2 pi r h plus 2 pi r square, कॉमन ले ले हम 2 pi r, so h plus r will be left, तो आपको क्या लिखना है, आपको पूरी चीज नहीं लिखनी है, जस्ट यू नीड टू राइट TSA of cylinder is 2 pi r h plus r, you need to just write down this part, do you clear, Yes, sir. make a make a note of it fast, I'm done. डन, दैट्स ग्रेट, गुड, अब इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, दैट वी कॉल्ड कोन, व्हाट वी कॉल्ड Phone.
कोन, कोन का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बर्थडे कैप्स वगैरह कुछ ऐसा दिखता है कोन। कैन यू सी दैट? Yes. दिस इज व्हाट, दिस इज कोन। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना। डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. This is the height of the cone. This is what? Height Height of- of the cone. And this is the radius of the cone. Can you see that? Yes, sir. This will be known as what? L will be known as, मैं यहाँ लिख देता हूँ, L will be, ये देख रहे हो, L is known as slant height. Slant height मतलब झुका हुआ height। क्या होता है? झुका Cone. हुआ height। H is known as height of cone. Height of cone. R is known as radius. Do you clear? Yes, sir. तो याद रखो, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 times pi r square h. मेक अ नोट। इसके हम फॉर्मूला प्रूविंग इस समय नहीं जाएंगे, बिकॉज Because what, sir? बिकॉज इसके बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, उतनी जाने की जरूरत नहीं है आपको। Okay. Sir, done. Sir, done. ओके ओके फाइन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ये L कैसे निकालोगे। डू यू नो दैट? No. कैन यू सी दिस राइट एंगल ट्रायंगल? No, sir. हाँ, Yes, sir. तो पाइथागोरस अप्लाई कर ले। Yes, sir. So L square is equals to H square plus R square. So L will be H square plus R square root under. This is the formula for finding slant height. Okay. Do you clear? Yes, sir. Okay. अब यहाँ पे हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। ओके, कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा मैं आपको बता देता हूँ अभी। दिस पोर्शन इज नोन एज कर्व सरफेस एरिया। Why? Okay, sir. ऊपर का पोर्शन, कैन यू सी दैट? Yes, sir. So this is known as curve। अगर मैं आपको सॉलिड कोन दिखाऊं, give me a second, solid, give me a moment, I'm just going to show you। Okay। सॉलिड कोन कहाँ चला? ओके, एक मिला है मुझे, just going to show you। Yes, can you see this? No. Yes. तो देखो नीचे में अगर आप देख रहे हो, नीचे में एक फ्लैट सरफेस दिख रहा है आपको। दिस इज सॉलिड वन। ओके, ये फ्लैट सरफेस हो गया। क्या हो गया ये? Flat surface. फ्लैट सरफेस। अच्छा, ऊपर में अगर आप मेरा ग्रीन पोर्शन देखोगे, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब घूमता हुआ, घुमा हुआ। देखो ना, ये सर्कुलर है ना, ये इसी को बोलते हैं सर्कुलर को कर्व सरफेस। अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसको बोलेंगे कर्व सरफेस। डू यू क्लियर? Yes, sir. तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है वो हो जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। मेक अ नोट। और इसमें टोटल सरफेस एरिया जो है TSA, यू नो वेरी वेल, CSA। कितने फ्लैट सरफेस है? ओनली वन। क्या है हमारे पास? ओनली One. वन। तो वो दैट इज सर्कल, दैट इज व्हाट? Circle. सर्कल। तो हम ये लिख दें पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर कॉमन, सो L प्लस R। दिस इज अ TSA। तो आपको बस बॉक्स वाला याद रखना है। डू यू क्लियर?
यस सर। सर कोन में 4 फॉर्मूलाज है ना फिर? कोन में 4 फॉर्मूला आ गए। डन सर। ओके, गिव मी अ सेकंड। नो सर, 1 सेकंड। Can you hear me? यस सर। Shall we move? यस सर। ओके, अब डोंट वरी, ज्यादा नहीं है, 2 शेप बचे हैं, वही करना है। ओके, कैन यू सी दिस? नो सर। अरे दिख तो रहा होगा ये वाला। हाँ अभी देखो। ओके, व्हाट इज दिस? स्फीयर, बॉल, राइट। तो स्फीयर में वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एंड दिस इज नोन एज टोटल सरफेस एरिया। आपको इसमें फ्लैट सरफेस नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये सीधा सीधा या तो आप इसको टोटल बोल लो या इसको सी एस ए बोल लो। सी एस ए एंड टोटल इज सेम इन दिस केस, अंडरस्टैंड? यस सर। इसमें फ्लैट है ही नहीं, तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। Are you clear? यस सर। Okay. Any problem in this? Okay. Hemisphere, what do you mean by hemisphere? आधा। हाँ, आधा स्फीयर ऑफ वन पूरा स्फीयर। आधा स्फीयर, राइट। यस। तो अगर हम बात करें हेमीस्फीयर की, तो वॉल्यूम का जस्ट हाफ हो जाएगा स्फीयर का। यस सर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज, देखो इसमें कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब है, राइट। यस तो इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 करते तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। एम आई राइट? यस तो हम सर। इसको लिख दें यहाँ पे, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, half of volume of a sphere, and that is how much? That is 4/3 pi r cube. That will become 2/3 pi r cube. Can you make a note of this, please? यस सर। Make a note fast. डन सर। Okay, done. यस सर। Okay, fine. Next इसमें जो है वो है कर्व सरफेस एरिया। क्या है इसमें? शॉर्ट सरफेस एरिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें देखो, दिस पोर्शन इज योर कर्व, कैन यू सी दैट? यस सर। तो कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का टोटल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो कर्व का हाफ हो जाएगा। सो वी कैन जस्ट राइट व्हाट, 2 पाई, अरे ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ओह माय गॉड, हाउ दे राइट, शिट, छी छी छी। 2 पाई आर स्क्वायर होता है, एच नहीं होता, ठीक है? यस ये सर। गलत दे रखा है, दिस इज आल्सो आर। किसने पढ़ाया है यार, ये तो गजब है, कौन पढ़ाया है? ये बस ये बाइजू वाले, ये देखो बाइजू वाले ऐसे पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। इतना गड़बड़, लीव इट। ये रेडियस सेम होता है इसमें, ठीक है? सो एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, अंडरस्टैंड? यस सर। मेक अ नोट। और टीएसए, टीएसए में क्या हो जाएगा, सीएसए प्लस फ्लैट सरफेस, सीएसए प्लस फ्लैट सरफेस। कौन सा फ्लैट सरफेस है इसमें? दिस इज, कैन यू सी दैट? यस। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ सर्कल, राइट? यस So सर। 2 pi r square plus pi r square will give you how much? 3 pi r square. Do you understand it? यस सर। तो इसको जल्दी से नोट कर लो।
So done. आपका चैप्टर हो गया फिनिश। डू यू नो दैट? चैप्टर हो गया फिनिश। बट चैप्टर नहीं, थ्योरी पोर्शन फिनिश हुआ है। ठीक है, अब मेन जंग जो है वो लड़नी बाकी है प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, तो आप एक काम ये करोगे, आप ये जितने फॉर्मूले मैंने बताए, क्यूब, क्या क्या बताया मैंने, क्यूब, क्यूबॉइड, राइट, उसके बाद सिलेंडर 3 हो गए, उसके बाद कोन 4 हो गया, स्फीयर 5 हो गया और हेमिस्फीयर 6 हो गए, राइट। Yes. आप इसका फॉर्मूला 2 बार लिखोगे, ठीक है, और किस पर लिखोगे, विद शेप बनाकर, बाद में, अभी अभी तो ऐसे कर लिया, विद शेप आप ये फॉर्मूला लिखोगे और जहां आप पढ़ाई करते हो वहां पे चिपका देना। अंडरस्टैंड? Okay, sir. टेबल पे जो कुछ होगा ना जहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते होगे, ठीक है, तो Yes. जैसे स्टिकी नोट्स कैसे होते हैं, वैसे Yes. स्टिकी नोट्स के लिए फिलहाल इसको चिपका देना, और रोज सुबह 5 दिनों तक, जैसे दवाई खाते हैं ना बच्चे लोग, Yes, ठीक है, sir. रोज सुबह 5 दिनों तक उसको पढ़ना डेली। Yes, sir. डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, ये दवाई समझ लो कि ये दवाई मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसको दवाई समझ के रोज सुबह सुबह पहले लिख लेना, नोटबुक पे चिपका देना, और रोज सुबह 5 दिन तक, ज्यादा दिन नहीं पढ़ना, सिर्फ ओनली फॉर 5 days, ठीक है, उसको Yes. आप पढ़ना पूरा, ठीक है। Yes, sir. चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है फॉर्मूला, अभी आप फॉर्मूला देख देख कर बना सकते हो, देयर इज अ नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलो अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। आई एम टेकिंग द फर्स्ट प्रॉब्लम। कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? A vessel in the form of a hemispherical bowl mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeters and the total height of the vessel is 13 centimeters. Find the capacity of the vessel used pi is equal to 22/7. अब देखो मेरी बात सुनो, जितना मैंने फॉर्मूला पहले पढ़ाया है ना, अब प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल, राइट। Yes. अब अगर फिगर आप देखोगे, मैंने फिगर दे दिया है आपके लिए, ऊपर में सिलेंडर है, कौन है ऊपर में, Cylinder. नीचे कौन है, Hemisphere. तो दोनों का अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है, Volume. वॉल्यूम ऑफ वेसल, क्या निकालना है, Vessel. volume of vessel. So can I do here volume of cylinder plus volume of hemisphere? Can I do that? Yes, sir. Volume of cylinder क्या होता है जी, pi r square h, और volume of hemisphere क्या होता है जी, 2/3 pi r cube. Any problem? No, sir. तो एक काम करो, अच्छा, what is the height of the cylinder? What is the height of cylinder? रेडियस कितना है, डायमीटर इज 14, सो रेडियस हो जाएगा 7, रेडियस हो जाएगा 7, तो ये यहाँ से यहाँ भी तो 7 होगा या नहीं होगा, बताओ, हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर में ये वाला 7 हो जाएगा। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर नाउ, 6। कैन यू सी दैट? Yes. तो ये सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। नाउ कैन वी डू फास्ट, 22/7 into रेडियस कितना है जी, रेडियस इज 7, तो 7 times 7, हाइट इज 6, एक ये हो गया, और इसके लिए करते हैं तो 2/3, 22/7, 7 times 7 times 7, कोई दिक्कत है, No, sir. बताओ, ज्यादा दिमाग लगाना है हमें, फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट, Yes, sir. करेक्ट। तो चलो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, सो 22 times 7 times 6, प्लस इसमें ये 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल होगा क्या, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सो 2 times 22 times ये हो गया 49/3। चलो दोनों सॉल्व करो और आंसर बताओ, सॉल्व इट फास्ट, 1 second. यस, टेक योर टाइम।
So the answer is 1628. 1628 28. नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है। कैसे, मैं चेक करता हूँ। लेट मी सी, आपने कुछ गड़बड़ी की होगी। 22 times 7 times 6 will give me 924। पहले वाले का 924 आएगा, राइट? Yes. तो मैंने चलो 924 लिख दिया यहाँ पे। दूसरे वाले में इफ आई चेक दैट, तो 44 times 49 divided by 3, 718.6, 18. 718.6 दोनों को ऐड कर देते हैं। सो 924, ये कुछ 1642.6 आ रहा है। आपको कैसे 28 आ गया? सर मैंने 2 into 22 into 49 divided by 3 का कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्लियर है कैसे बनाते हैं? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? यस सर। क्या बोल रहे हैं? हेलो? नो सर, नो। नो, ओके ओके, फाइन, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। ओह माय गॉड। Giving us a problem. This is the problem. Uploading. Can you see the question? यस सर। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा। A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of radius 3.5 centimeters. The total height of the toy is 15.5 centimeters. Find the total surface area and volume of the toy. फिलहाल मैंने आपको फिगर दे दिया है समझने के लिए। अब देखो इसमें दो चीजें कहता है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालने के लिए कहता है और वॉल्यूम भी निकालने को कहता है। मैं पहले आपको डिस्कस करूंगा इसमें वॉल्यूम, ठीक है? तो वॉल्यूम के लिए बहुत सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ टॉय अगर मुझे इसने पूछा, राइट, तो क्या करोगे आप? क्या शेप दिख रहा है? वॉल्यूम ऑफ cone and volume of hemisphere. हेमीस्फीयर, गुड, परफेक्ट। अब बात प्रॉब्लम कहाँ आएगी पता है आपको? प्रॉब्लम आएगी वॉल्यूम ऑफ कोन में स्लैंट, अच्छा हाइट चाहिए आपको, राइट? तो Yes. पूरा का पूरा 15.5 है। सो व्हाट इज दिस हाइट? वॉल्यूम ऑफ कोन का हाइट क्या हो जाएगा? 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसमें से? Yeah. इट विल बी व्हाट? इट विल बी 12। एनी प्रॉब्लम? No sir. तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। एम आई राइट? Yes sir. सो 1/3 पाई 22/7। अच्छा एक चीज देख लेना, पाई के लिए ना कभी कभी यहाँ 3.14 बोलते हैं, क्वेश्चन में लिखा रहता है, तो ध्यान दे लेना। अगर नहीं बोला है तब तो आप कुछ भी लो अपनी मर्जी से, लेकिन अगर बोल दिया है तो वही लेना। डू यू क्लियर? Yes sir. अच्छा,
रेडियस क्या है जी? तो 3.5। सो 3.5 को मैं 7/2 लिख दूं। कैन यू सी दैट? Yes, sir. क्यों मैंने लिखा? कैलकुलेशन में इजी के लिए। प्लस 2/3, 22/7, और ये 7/2 टाइम्स 7/2 टाइम्स 7/2। चलो अब कुछ कैंसलेशन कर लिया जाए। तो एक कैंसलेशन यहाँ से, एक कैंसलेशन यहाँ से, और 3 4 जा 2 2 जा, तो हमारे पास क्या बच गया? 11 टाइम्स 7 टाइम्स 2। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, No, sir. ये क्या? 154. हाँ ठीक है, 154, ठीक है, बहुत बढ़िया। 154 इधर करते हैं तो ये कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल, पर ये 2 से हम जाते हैं तो ये 11 टाइम्स आ जाएगा, और कुछ जाएगा, और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है जाएगा। तो ये 11 टाइम्स 7 टाइम्स 7 बाय 3 टाइम्स 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 49 टाइम्स 11, 49 times 11 divided by 6 will give me 89.83। 89.83, उसको ऐड कर लो 154 में, so 243.83। 243.83 83. यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. ओके, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, No, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन इसी में है, कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलता है? Find the फाइंड द total टोटल area. सर। अब जब बात करोगे टोटल सरफेस की, तो मैंने जब टोटल सरफेस पढ़ाया था तो उसमें तो जी मैंने बोला कि कर्व सरफेस एरिया को फ्लैट सरफेस एरिया में ऐड कर दो। एम आई राइट? Yes. यहाँ भी वही चीज पढ़ाया, कोन में भी वही काम कराया कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस में फ्लैट सरफेस ऐड कर दो, राइट? लेकिन यहाँ आप दिमाग लगाना है। क्यों, क्या दिमाग लगाना है? पेंटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो? अगर मैं ये टॉय आपको देता हूँ, suppose it I will give you this toy to you, so you can do the painting here. Can you see that? Yes, sir. And you can do the painting on the surface of curved surface of hemisphere. Is it possible to do the painting on the flat surface of the hemisphere and the cone? No, sir. फ्लैट सरफेस वहां पे वो ज्वाइंट रहते का रहेगा ना। आपने देखा ना बच्चों का जो टॉय आता है ज्वाइंट रहता है, तो ज्वाइंट पे कहीं आप फ्लैट सरफेस पे पेंट कर पाओगे क्या? मुझे ये बताओ। No, sir. नहीं। तो याद रखना, जब भी ये सरफेस एरिया की बात करें, जब भी ये सरफेस एरिया की बात करें, तो आप याद रखना पेंटिंग कहां कर सकते हो। तो देखो पेंटिंग में, मेरी बात ध्यान से सुनो, पेंटिंग में सीएसए ऑफ कौन कर सकता हूं, एम आई राइट? Yes, sir. एंड पेंटिंग में सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर कर सकता हूं। एम आई करेक्ट? एम आई Yes, करेक्ट? sir. तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय will be CSA of cone plus CSA of hemisphere. Do you clear that? Yes, sir. हम फ्लैट सरफेस ऐड नहीं करेंगे। अब CSA ऑफ कोन क्या है जी? CSA ऑफ कोन है πRL, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर है 2πr²। कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. अब हमें इसमें किसकी वैल्यू नहीं पता, L की वैल्यू नहीं मालूम है। So can you see that and can you find the L value here? This is the L value. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं L वैल्यू देखूं तो it looks like something this. Can you see that? Yes, sir. This is 3.5, this is 12, and this is your L. So can you just find out what is L now? Yes, sir. Sir, it will be 3.5 square plus L square is equal to 12 square, no? No, sorry. No, no, It no. will be 12 square plus 3.5 square is equal to L square is equals to 12 square
प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो L की वैल्यू निकालो पहले, इतना तो आप कर सकते हो, राइट? Yes, sir. So 3.5 का स्क्वायर क्या है? Okay, I will let you know. 12.25. 144 plus 12.25, so ये हो जाएगा 144, so 156.25 L square, so L will be 12.5। कितना हो जाएगा L की वैल्यू? 12.5. 12.5 हो जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ लिखो 22/7, 7/2, 12.5, और यहाँ लिखोगे 2, 22/7, 7/2 times 7/2. Okay, if you see the cancellation, this is cancelled, this is cancelled, so 11, so 11 into 12.5, और इधर में ये cancel, ये cancel, ये cancel, ये यहाँ पे 11 से, so 11 times 7. Understood? Yes, sir. So ये हो जाएगा 11, so 137.5 plus 77, so कितना हो जाएगा? इसमें कैलकुलेशंस ही थोड़ी डिफिकल्ट है, बाद बाकी कोई कॉन्सेप्ट में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, राइट? Yes, sir. सो दिस इज डन। क्लियर है कैसे किया हमने? Yes, sir. ओके, सो ठीक है, अभी मेरी दूसरी क्लास है, सो आई विल एंड इट, बट आप एक काम करना, मैं ना आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क प्लीज। Sir, you have already given me the homework. किस चैप्टर का? This chapter only. हाँ, This chapter only. दिस चैप्टर मतलब अभी वो तो होमवर्क फॉर्मूला है ना। Okay, हेलो, sir. वो तो फॉर्मूला है, प्रैक्टिस के लिए कहाँ दिया है कुछ? वो तो आसान सा चीज मिला हुआ है आपको, ठीक है? Yes, sir. मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें नोट डाउन करो जरा, नोट डाउन करो। पेज नंबर 743, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, पेज नंबर 743, एक सेकंड मुझे चेक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, श्योर। मैंने पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप किया है, ठीक है? वो पहुंच जाएगा आपके पास थोड़ी देर में। Sir, what is पेज the हाँ what is the homework? हाँ, पेज नंबर 743 में सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। क्या है? सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो लिखो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, लिखो जरा। एग्जांपल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 एग्जांपल्स हैं, ठीक है? कैन यू हियर मी? Yes, sir. ये 10 एग्जांपल्स जो है Yes, वो sir. मैंने बुक भेज दिया है आपको। आई थिंक यू हैव रिसीव्ड इट, सो प्लीज डू दिस 10 एग्जांपल। सिर्फ एग्जांपल देख देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? Okay, sir. हाँ, आपको ऐसा लगे कि आपको खुद से करने में डिफिकल्टी आएगी, Yes, sir. तो आप एग्जांपल देखना कैसे बना रहे हैं वो लोग, और देख देख के उसको करना, कोई बात नहीं, ठीक है? क्लियर? क्लियर है ध्रुव? Yes, sir. और कब सबमिट Okay, करोगे? sir. बाय संडे? Yes, sir. ठीक है, बाय संडे सबमिट कर दो। Yeah. ओके, चलो बाय। हेलो अविनाश जी। यस मैम, यस मैम, टेल मी। हाँ, ओके, आई जस्ट वांटेड टू से वो फिजिक्स का